Very good morning. Uh, Good morning, sir. Very good morning. So some 19-20 students are there. Within 1 or 2 minutes, we should start the class because today, I think this week, for this week, it is the last class. And I would like to conclude the pharmacodynamics. Apart from this class, some more topics, some more can be discussed. So we'll arrange in the next week or after next week one special class, so that if anything is left or if any problem is there, I'll give you 15-20 days, 10-15 days time, at least 2 weeks time, so that you can revise the whole syllabus. And if you have any doubt, we can fix one problem solving class or any revision class like that. And some leftover content we'll be discussing. So today we'll try to conclude this pharmacodynamics. There are some important things which are left. So I'm sharing my screen. So for today's class, we'll be discussing about the combined effect of drugs when we are giving so many drugs at a time, how they are interacting in the body, what is the concept of how the drug interactions, and also we'll be discussing the action of drugs, what are the different factors which affect action of drugs. So these two topics are very interesting. In the last class, we had discussed the dose-response relationship. Just for revision, we had discussed dose-response relationship, and we had discussed two types of dose-response relationship. We had discussed that when we increase the doses of any drug, the response increases. So this kind of study we can perform in two settings. First, in a single individual system, where when you are increasing the different, you are administering different doses of a drug in a single individual, and you are getting different responses, increasing responses like that, and you can draw a correlation curve. Relationship you can draw, and that relationship you can say it is a graded dose response relationship, because you are giving the different grades of the different doses of the same drug. Whereas if we are studying the effect of any drug on a population basis, we need to study the quantal dose response relationship, and for that we cannot give multiple doses or different doses. We have to fix the dose, and we have to study the fixed dose effect of that particular fixed dose in a population, whether it is yes or no. So it was a all or none phenomenon, and so these things, and the graph and the concept of LD50 value and ED50 value we had discussed, and the ratio of these two we had discussed, the concept of therapeutic index and safety margin. Today we'll be discussing when we are giving multiple drugs, so many drugs, because once you visit any doctor, doctor prescribes a lot of drugs, 1, 2, 3, 4, and you take this one in the morning, evening, and like that. So for the time being, you have till date you have studied that whatever drugs you are giving, it is going to define targets in the body. Those targets may be in the form of receptors also, and once it is binding to the receptors, it is activating those receptors, and second messengers and all these things are activated, and physiological response is generated. Pharmacological response was generated. So this was the mechanism of action of drugs, how drugs were acting. Either it may act by the stimulation of the receptor, or by irritation, or by inhibition, or by different mechanisms. But what will happen when we are giving 2 or 3 drugs at a time, and all 3 or 2 drugs, they are acting on us on the same target? It may happen if all 2 or 3 drugs are similar drugs, if they have the common targets. In that condition, what will happen? There may be fight. There may be fight among these 2 drugs, that I will bind with the receptor, or you will bind with the, let's decide by fight. Or so there may be chances of competition, or we can say that
drugs will interact in the body among themselves, and action of one drug can be affected by the other. So this drug interaction or the combined effect of drugs we need to understand. So when two or more drugs are given simultaneously or in a quick succession, say for example, you have taken one injection and thereafter 5-10 minutes you are taking the second injection, everything is going in your body. If they are being absorbed, everything is getting available in the blood circulation, and they will meet with themselves. If they are friends, they will work in a parallel direction without fighting. If they are not friends, they may fight also. So the scope of drug interaction is there, and drugs, they may act synergistically, they may act in combination, they may act antagonistically also. So apart from that, these interactions may be of pharmacokinetic interaction. Say, for example, if two drugs are being absorbed at a time from the same site of absorption, they may compete for absorption, that I will go first, I will go first. So there also interaction. At the time of metabolism, also there can be interaction. If the same enzyme is metabolizing both of the drugs, also at that time also there will be drug interaction or competition like that. So pharmacokinetic, at all levels of pharmacokinetics, A, D, M, E, this interaction can happen at the level of absorption, distribution, metabolism, and excretion. At all levels, this interaction, drug interaction, can happen. Not only that, even at the pharmacodynamic level, if the drug is binding to the receptor, for drug binding also, so all these things can happen. Coming one to one, if these interactions, if they are in a positive direction, so when the action of one drug is facilitated or increased by the action of the other, we can say that the interaction is synergism. There is synergism, or there is synergistic action, that both are acting in a parallel or positive direction. So synergistic action can be of two types. It can be simply additive. That means if the action of drug A is 1 and drug B is also 1, this overall action will be 1 plus 1. If it is 1 plus 1, 2, then it is simple additive action. Nobody is disturbing anybody. Overall action is totally added. But one may help other. If the action of one and two drugs is the more than the mathematical sum, we can say it is supra-additive, or it is potentiative action. So let's see one by one. In case of additive action, effect of drug A plus effect of drug B. So effect of drug A and B combined effect is simply equal to the effect of drug A and effect of drug B. As we can say, we have taken aspirin and paracetamol tablets. We are taking Comiflam or ibuprofen and paracetamol tablets. One is analgesic, other is antipyretic. So both of them are acting in a additive fashion. Simply their effects are added. It's not potentiated. It's not supra-additive. Whereas in some of the cases, say for example, a lot of if you are taking penicillin antibiotic and you are taking streptomycin antibiotic, and both of them you are taking together, the overall response is more than the it is more than the individual sum. So if this is more than, if the action of two drugs, combined action of two drugs, it is more than their individual actions, we can say it is not simply additive. Something interaction, something is going on, so that one drug is helping the other, or overall their action is enhanced. So a lot of examples are there, and reasons behind that. For each and in each and every case, there are specific reasons that you will learn to know. In case of penicillin and this streptomycin, you know that penicillin is an antibiotic which is acting basically with the gram-positive microorganisms, and this streptomycin is acting basically with gram-negative microorganisms. If you are giving together, they are acting synergistically. They are covering the entire range of bacteria, microorganisms, and
Not only that, the required doses of penicillin and streptomycin, there are also individual doses are getting reduced, that we are seeing. So it's proven that when both of these are given, there is synergistic action. Why we are studying these drug interactions? If they are interacting in a positive way, that's none of our business. We should not be disturbed, but we should be disturbed. We have to adjust the doses. अगर एक सिंगल ड्रग को हम अगर 500 मिलीग्राम देते हैं, दूसरे को 500 मिलीग्राम देते हैं, अगर हम सिंगल देते हैं तो ठीक है, 500 मिलीग्राम का डोज पड़ेगा। लेकिन अंदर जाने के बाद अगर वो दोनों 250 मिलीग्राम ही देने से दोनों का 500 मिलीग्राम का के बराबर काम कर रहा है, तो क्यों 500 मिलीग्राम? उनका रोड, अगर उनका सिनर्जिस्टिक एक्शन है तो हम डोज रीएडजस्ट करेंगे कि अगर साथ में देंगे तो दो अगर फ्रेंड्स जा रहे हैं, दोनों के पास लिखने के लिए, खेलने के लिए वहां जाके खेलना है, तो दोनों अपना अपना बैट और विकेट और किट नहीं ले जाएगा, कोई एक ले जाएगा तो दूसरा बॉल ले जाएगा। इस तरीके से सिनर्जिस्टिक एक्शन हो सकता है, तो दोनों का यूटिलिटी घट जाएगा कि कोई कब सामान रहा है, दोनों मिलकर काम चला रहे। तो इन दैट केस वी हैव टू एडजस्ट द डोजेस। डोज एडजस्ट करने से उस ड्रग की टॉक्सिसिटी भी घटेगी, कॉस्ट भी घटेगी, ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ तो सिनर्जिज्म है कि कोई झगड़ा नहीं, लेकिन जहां अगर झगड़ाने वाले ड्रग है वहां हमें केयरफुल रहना होगा। जैसे नेक्स्ट, इफ देयर इज एंटागोनिस्टिक एक्शन, अगर दो ड्रग के बीच में, अगर दो ड्रग का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो अगर लेस देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं, कहने का मतलब जाने के बाद कुछ पंगा होता है, झगड़ा होता है, इन दैट केस वी हैव टू सी कि साथ में दें या नहीं दें। साथ में नहीं देंगे फिर वैसे में, अगर दो आप फ्रेंड्स हैं और दोनों में बहुत झगड़ा होता है तो आपके वार्डन जो है एक ही रूम में नहीं शिफ्ट करेंगे, बहुत झगड़ा होगा दोनों को अलग अलग कर देगा। तो फॉर ड्रग्स विच आर शोइंग एंटागोनिस्टिक एक्शन, वी शुड बी केयरफुल व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग दोज ड्रग्स एट ए टाइम। कुछ डिसाइड करेगा कि अंदर एक साथ ना मिले बॉडी में। Now this antagonism can be of so many types, can be by so many ways. It can be physical antagonism, जैसे एक ड्रग का जो say for example this activated charcoal absorbs, show the property of adsorption. So if you are giving two drugs, which one is adsorbent and other is the drug which is showing the property of adsorption, ये दोनों अगर एक दूसरे पे चिपक गया तो ये एब्जॉर्ब, फर्दर उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो दिस एब्जॉर्प्शन इज अ फिजिकल मैकेनिज्म, कोई इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ है। तो बाय फिजिकल मींस आल्सो एंटागोनिज्म हो सकता है। जैसे बहुत सारे अल्कलॉइडल पॉइजनिंग्स हैं, जो पॉइजनिंग के केसेस हैं, और किसी ने पॉइजन ले लिया, खा लिया, अभी जीआई ट्रैक्ट में ही है, स्टमक में ही है, फर्दर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एड्सॉर्बेंट एजेंट्स लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, कैओलिन, ये सारे एजेंट्स हम देते हैं और वो जीआई ट्रैक्ट में उसके टॉक्सिन्स को जाके एड्सॉर्ब कर लेगा। एड्सॉर्प्शन मतलब उसके सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा, वही फिजिकल एक्शन, और फिर उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में प्रिवेंट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो स्टूल से पास आउट हो जाएगा। तो उसका पॉइजन का अगर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं गया है तो उसका एक्शन नहीं होगा, उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी पॉइजनिंग साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो दैट इज हाउ वी, एक ट्रीटमेंट का एक मैकेनिज्म है, एड्सॉर्बेंट एजेंट्स को हम अप्लाई करते हैं। तो दैट इज वन वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंटागोनिज्म। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एंटागोनिज्म कैन बी केमिकली आल्सो। दो ड्रग अगर एसिड बेस को साथ में दे देंगे तो रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा। तो ऐसे सो मेनी है, जैसे कि KMnO4 को हम वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। KMnO4 से अगर कहीं मॉप करते हैं तो माइक्रोब्स को स्टरलाइज करता है। नाउ दिस KMnO4 also oxidizes a lot of chemicals, जैसे अल्कलॉइड्स को ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। नाउ दिस KMnO4 एंड अल्कलॉइड्स, दे आर शोइंग केमिकल एंटागोनिज्म। साथ में रखेंगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हम साथ में वैसे ही ड्रग्स को प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है जिसमें किसी टाइप का एंटागोनिज्म नहीं हो, ना फिजिकल हो, ना केमिकल हो, ना फार्माकोलॉजिकल हो, अदर टाइप्स भी हैं। अब आपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि फलाना इंजेक्शन लेना है, ये दूसरा इंजेक्शन लेना है, तीसरा भी लेना है। कंपाउंडर अगर वो ट्रेंड नहीं है और वो क्या करेगा, 5 ml पहला वाला इंजेक्शन, 2 ml दूसरा वाला, तीनों इंजेक्शन एक ही सीरीज में मिक्स कर लिया,
कि बार बार प्रिक ना देना पड़े, आप भी बोलोगे डॉक्टर साहब एक ही बार प्रिक में हमारा काम चल जाए। अब वो अगर इंजेक्शन सीरीज में ही एक दूसरे से मिल करके प्रेसिपिटेट होने लगे, ऐसा हो सकता है ना कि दो लिक्विड्स एक दूसरे में कॉम्पैटिबल नहीं हो, तो उसको अलग अलग इंजेक्शन देना होगा, एक सीरीज में मिक्स करके नहीं दे सकते। दीज थिंग्स वी शुड नो कि उनकी केमिकल कॉम्पैटिबिलिटी है या नहीं, वेदर दे आर केमिकली कॉम्पैटिबल और नॉट। सो ये सारे कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हो सकते हैं केमिकल एंटागोनिज्म के। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे एंटागोनिज्म के अलावा फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म भी हो सकता है। बॉडी पे जाने के बाद झगड़ा करें, बाहर में फिजिकल एंटागोनिज्म नहीं है, केमिकल भी नहीं है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद सेम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, सेम फिजियोलॉजी दोनों शेयर करता है। अगर जैसे एक इंसुलिन जानते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करेगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, बढ़ाएगा, दोनों को साथ में इंजेक्ट कर देंगे तो झगड़ा होगा, फिर एक घटाएगा एक बढ़ाएगा, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो जाएगा। इस तरीके से हिस्टामिन एड्रेनलिन का दे सकते हैं। हिस्टामिन क्या है कि स्मूथ मसल्स या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स ब्लड कैपिलरीज को रिलैक्स करेगा ब्लड प्रेशर पे, और एड्रेनलिन उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो इन दोनों का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है। केमिकली एक साथ रह सकते हैं, कोई केमिकल एंटागोनिज्म नहीं है, फिजिकल नहीं है, बट दे आर फिजियोलॉजिकली एंटागोनिस्टिक। एक का फंक्शन दूसरे को अफेक्ट करता है। तो ऐसे ड्रग्स को भी साथ में देने के पहले एज ए डॉक्टर यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। जो पैराफिट्स हैं, क्वैक्स हैं, दे आर नॉट नोइंग दीस साइंस। वो धड़ल्ले आंख बंद करके सारे ड्रग को लगाया पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो सकता है कि सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शेयर करे, सेम रिसेप्टर ब्लॉक हो सकता है, सेम रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे, तो लफड़ा हो जाएगा। सेम फिजियोलॉजी शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, रिसेप्टर्स कॉमन है, तो फिर झगड़ा होगा वैसे में, जैसे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हैं। अब ये रिसेप्टर ब्लॉकेड या जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है, ये दो टाइप का हो सकता है। अगर दो ड्रग्स एक कॉमन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, इफ दे आर बाइंडिंग टू अ कॉमन रिसेप्टर, एक चेयर है, दो लोग बैठने वाले हैं, तो कोई एक ही बैठेगा, या जो मजबूत होगा वो बैठेगा, या आपस में डिसाइड कर ले पहले मैं बैठूंगा फिर आप। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में यही सारा हो रहा है कि जो उनके रिसेप्टर्स हैं वो फिक्स्ड है, कॉमन है, और कंपटीशन होगा। नाउ दिस कंपटीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी कॉम्पिटिटिव और इट कैन बी नॉन कॉम्पिटिटिव। जो हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इंटरेक्शंस हैं, इट इज कॉम्पिटिटिव इन नेचर। और कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब जो मजबूत होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, वो बाइंड करेगा। जिसका 50% से ज्यादा पार्टी आ गया वो गवर्नमेंट बना लेता है, जो 10-15% वाले का तो नहीं बनता है। तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल हो सकता है, जो जिसकी ज्यादा है उसकी सरकार बन गई, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड कर ले। बाइंड करने के बाद रिसेप्टर को छोड़ना भी है, क्योंकि ड्रग बॉडी से जैसे जैसे एलिमिनेट होगा, फिर धीरे धीरे रिसेप्टर से वो ड्रग डिटैच होकर ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और फिर एलिमिनेट होगा, और एक दिन 2 दिन के बाद वो ड्रग बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, जो उसका विड्रॉल पीरियड होगा बॉडी, जो उसका मैक्सिमम एलिमिनेशन टाइम होगा, उस पीरियड में वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म जो है रिवर्सिबल हो सकता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बॉडी में रिवर्सिबल ही होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सरकार बन गई, अब कुर्सी नहीं छोड़ूंगा मैं, वो कुर्सी से परमानेंट बाइंडिंग हो जाए, कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, ऐसा तो छोड़ने का अगर नहीं नाम ले, तो नाउ दिस कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म सरकार में बनने के लिए तो कंपटीशन से गया, लेकिन जाने के बाद वो छोड़ नहीं रहा है, वो अपने रिसेप्टर से कोई परमानेंट या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, जो नॉर्मली ड्रग डिटैच नहीं हो, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन नील भी हो जाए फिर भी ना डिटैच हो। In that case, it can be irreversible, non-equilibrium type competitive antagonism. अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना ले या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, ऐसे भी, लेकिन बॉडी में ऐसे लेसर एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट टाइप का जो एंटागोनिज्म हो सकता है नॉन कॉम्पिटिटिव। इसको हम अगर आ गए तो बाकी कोई भी है हम ही बैठे, कोई कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं, जहां हम खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू हो, अगर ये कॉन्सेप्ट है
तो इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव, कोई कंपटीशन से मतलब नहीं। तो ये कैसे होता है, हाउ इट हैपेंस? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म जो है, रिसेप्टर के जो एक्टिव साइट्स हैं, चेयर पे तो एक्टिव साइड पे बैठते हैं ना, जो बैठने की जगह वहां बैठते हैं, नीचे तो नहीं बैठते हैं। तो एक्टिव साइड के लिए अगर कंपटीशन है, देन इट वाज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। लेकिन मैं अगर चेयर पे बैठ जाऊंगा, मेरा दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो चेयर पे ना बैठे, चेयर के नट बोल्ट पैर काटने लगे, तो ये अगर मैकेनिज्म है, इफ द ड्रग इज बाइंडिंग टू एनी अदर साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ड्रग तो अपने एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा क्योंकि ड्रग और रिसेप्टर के बीच में कॉन्फ़िगरेशनल फिटिंग है, लेकिन दूसरा है जो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके या दूसरा किसी से काम करे, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। अब उसका तो कोई इलाज नहीं है, जो जा करके और वहां से कुर्सी के नट बोल्ट खोल के खराब कर दे तो गिरना ही गिरना फिर। तो वो रिसेप्टर खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म हो सकता है दूसरे वे से। जैसे बॉडी में कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे वेरापामिल जो है, निफेडिपिन, दे आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कैल्शियम की सेल में एंट्री को ब्लॉक करते हैं। अगर इनको दे दें तो इंट्रासेलुलर अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम ब्लॉक हो जाएगा, सेल्स में या फिर मसल सेल्स में इंट्रासेलुलरली अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मस्कुलर एक ड्रग है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और एक ड्रग है जो कैल्शियम के एंट्री को ब्लॉक करता है। दोनों को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म हो जाएगा। आप अंदर जाके मसल को कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, अंदर जाके भी कुछ नहीं करोगे। तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कहने का मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एंटागोनिज्म नहीं हो रहा है, इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस हैं। वी शुड नो एज ए फार्माकोलॉजिस्ट कि ड्रग्स का एक दूसरे से कैसा व्यवहार है। अगर सिनर्जिस्टिक है, इन दैट केस आल्सो वी शुड रीएडजस्ट द डोजेस। हमें पता होना चाहिए कि अंदर बॉडी में जाने के बाद कितनी दोस्ती है। एग्जामिनेशन में मान लो कि आप सबको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया, सबको बोला जाता है अपना अपना लिखना है। अगर इन्विजिलेशन प्रॉपर छोड़ दे तो अंदर में सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाता है, एक दूसरे को हेल्प कर लेगा, तो फिर तो प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होगा। और अगर 2 बरसों के झगड़ने वाले बच्चे हैं एक बेंच में बिठा दे, तो लिखेगा काम, मौका मिलेगा तो एक दूसरे को फोड़ने का कोशिश करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का टीचर को आइडिया होना चाहिए कि बॉडी के अंदर अगर ड्रग्स जाता है तो उनका इंटरेक्शन है या नहीं। एज ए डॉक्टर आप अच्छे से सक्सेसफुल तभी होंगे, आपका ड्रग एक्शन अच्छा तभी होगा जब आप एंटागोनिस्टिक ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, या जहां यूज करना है। पॉइजनिंग केसेस में बहुत सारे एंटागोनिस्ट यूज होते हैं, दे आर यूज्ड क्लिनिकली, कि अगर कोई पॉइजन है तो उसको एक्ट करने से बॉडी में हम रोक सके, कोई उसका एंटागोनिस्ट दें। तो ऐसा नहीं कि एंटागोनिस्ट का कोई क्लिनिकल यूजेस नहीं है, किसी ने कोई जहर खा लिया, अब अंदर चला गया पॉइजन, तब क्या कर सकते हैं? अब तो दूसरा उसका एंटागोनिस्ट भेजना होगा, वो जा करके उसको अपने रिसेप्टर पर बाइंड करने से रोके या उसको न्यूट्रलाइज करे बॉडी। तो पॉइजनिंग केसेस में एंटागोनिस्ट के काफी क्लिनिकल यूजेस हैं, और भी इसके अलावा अभी फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे सिस्टम फार्माकोलॉजी या दूसरे पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे आपको एंटागोनिस्ट एग्जांपल्स आएंगे। एक लास्ट कंसर्न है ड्रग एक्शन, और ड्रग एक्शन जो या ड्रग का जो इफेक्ट है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो उसको मॉडिफाई या अफेक्ट करते हैं। तो उनको एक बार देखें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। जैसे वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्पीशीज वेरिएशन। एक सेम ड्रग का सारे स्पीशीज में सेम एक्शन नहीं होता है। जैसे कि एक ड्रग है मॉर्फिन, मॉर्फिन का नाम सुना होगा, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, नार्कोटिक है, इसलिए डे टू डे यूज नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे। बट इसका सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन है, एनाल्जेसिक एक्शन है, सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन है। लेकिन कैट में, बिल्ली को मॉर्फिन सुंघा भी दो, थोड़ा स्मेल भी करा दो, तो वो बिल्ली उछलने लगेगी, हाईली उसमें जो है एक्साइटेटरी एक्शन। अगर किसी के घर की बिल्ली को अगर भड़काना है तो मॉर्फिन का एक पुड़िया उसको स्मेल करा दो, उसके बाद फिर हो जाएगा वो। इतना ज्यादा एक्साइटेटरी एक्शन है कि उसको मैनियाकल एक्साइटमेंट बोलते हैं।
तो स्पीशीज वेरिएशन है। हाँ, अब पूछोगे स्पीशीज वेरिएशन का, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड रीजन जरूर है, बहुत सारे, तो हर किसी में अलग अलग रीजन है। इसके पीछे है कि मॉर्फिन जो है वो सेडेटिव एक्शन नहीं करता, प्लस कैट में जो है, कैट में जो मॉर्फिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्लूकोनाइड मेटाबॉलिज्म से होता है, ठीक है। और ग्लूकोनाइड मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम है ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, उस एंजाइम का कॉरेस्पॉन्डिंग जीन्स जो है वो कैट में डिफिशिएंट होता है, नहीं होता है। तो ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम कैट में नहीं होता है या बहुत लेस कॉन्सेंट्रेशन में होता है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो फिर ये लॉन्ग एक्टिंग भी होता है प्लस उल्टा भी काम करता है। तो सारे रीजंस हैं, बट व्हाट आई वांट टू से कि ड्रग के एक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीशीज वेरिएशन। डिफरेंट स्पीशीज में उनका अलग अलग बिहेवियर है। एट्रोपिन, बेलाडोना प्लांट का नाम सुना होगा, एट्रोपा बेलाडोना, बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे धतुरा, धतुरा का नाम सुना है, धतुरा प्लांट देखा है जिसमें धतुरा जो भोले बाबा शिव जी को, तो वो धतुरा को या एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है, रैबिट अगर उसको खा ले तो रैबिट को, खरगोश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे एनिमल्स को खिला दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगी, डेथ भी हो सकता है, लेकिन रैबिट्स को नहीं होता, क्योंकि रैबिट के जीआई ट्रैक्ट में एक एंजाइम होता है, जीआई एंजाइम होता है एट्रोपिनेज। वो एट्रोपिन जो बेलाडोना प्लांट में जो टॉक्सिक मॉइटी है, टॉक्सिक केमिकल है, वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, एट्रोपिनेज टॉपिक एसिड, और उसमें हाइड्रोलाइज कर देता है। तो जब ऐसा मैकेनिज्म है तो किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो rabbits can very easily feed on belladonna leaves। तो एक स्पीशीज वेरिएशन है, स्पीशीज को समझो कि एक इम्यूनिटी मिली हुई है बाय। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीशीज वेरिएशन, कुछ एक ही स्पीशीज में डिफरेंट इंडिविजुअल में वेरिएशन हो सकता है। जैसे एक ड्रग का अगर एक ड्रग ले, मान लो कि एनाल्जेसिक मेडिसिन ले, जो सबको दे, तो सब में सेम एग्जैक्टली सेम एक्शन नहीं होता है, सिमिलर हो सकता है बट सेम एक्शन नहीं होता है। एक्शन हर एक इंडिविजुअल में, इवन विद इन अ स्पीशीज, विद इन अ पॉपुलेशन, एक ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट एक्शन होता है। सिमिलर एक्शन होगा बट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, इट इज डिफरेंट एक्शन। तो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर किसी के जेनेटिक मेकअप, आई एम डिफरेंट फ्रॉम योरसेल्फ, मेरे में कुछ अलग है जीन्स है, आप में कुछ अलग है। अब ये सारे जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, ऑब्वियसली ड्रग एक्शन को किसी ना किसी तरीके से तो अफेक्ट करेगा। हमारे में कुछ ऐसे एंजाइम हो सकते हैं जो किसी ड्रग को ज्यादा मेटाबोलाइज करे, आप में वो एंजाइम थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसको हम इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए साइंटिफिक वर्ड दिया हुआ है इडियोसिंक्रेसी। So what is the reason of this idiosyncrasy? It is the reason behind are the genetic factors. जो क्योंकि दोनों की जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली अगर सेम होता, अगर वो होमोजाइगस ट्विंस होते, तो ड्रग का एक्शन एग्जैक्टली सेम होता, लेकिन नहीं है तो नहीं हो। इसके अलावा फिर एज ऑफ द एनिमल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जो एनिमल का एज है, जैसे आप वेरी यंग एज के जो एनिमल्स हैं, जो न्यूबॉर्न्स हैं, उसमें सारे और वेरी ओल्ड जो पर्सन्स हैं, इनमें ये सारे वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पर्सन्स, दे आर मोर सेंसिटिव टू एक्शन ऑफ ड्रग्स। व्हाई? क्योंकि उनमें जो ड्रग के जो मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं लाइक किडनीज, दे आर नॉट, वेरी यंग एनिमल्स में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, वेरी ओल्ड में वो प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं होता, बूढ़े हो गए हैं, इस वजह से उनका थोड़ा मेटाबॉलिज्म कम होगा, एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स थोड़े वीक हो गए हैं, तो उनमें हमें डोजेस को रीएडजस्ट करना होगा। यंग एंड वेरी ओल्ड एनिमल्स में लेसर डोजेज ऑफ द ड्रग यूज करते हैं, अगर सेम डोज यूज करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, टॉक्सिटी हो सकता है। सो एज ऑफ द एनिमल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम एज, सेक्स ऑफ द एनिमल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर आइदर मेल और फीमेल में ज्यादा एक्ट करते हैं, अदर सेक्स में कम एक्ट करते हैं। तो सेक्स के पीछे क्या रीजन हो सकता है? सेक्स हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है,
सेक्स हार्मोन्स दो डिफरेंट सेक्सेस में अलग हैं, टेस्टोस्टेरोन है प्लस उसमें एस्ट्रोजन है। नाउ जैसे एक एग्जांपल है, एक एंटी फंगल ड्रग है कीटोकोनाजोल। नाउ दिस कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, अगर मेल्स में दें। नाउ दिस कीटोकोनाजोल हैज गॉट, ये टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को मिनिमाइज करता है। और अगर एंटी फंगल ड्रग ऐसा तो नहीं है कि एक टैबलेट खाने से ठीक हो जाए, डॉक्टर लिखेगा 1 महीना 1.5 महीना लेना है, और 1.5 महीना अगर कीटोकोनाजोल अगर मेल्स में दें तो उसके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली डाउन होते रहेंगे, इतना ज्यादा डाउन होगा। इनिशियली गायनिकोमास्टिया के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उसके लिबिडो सेक्स लॉसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए एक सेक्स की वजह से जो वेरिएशन है ड्रग रिस्पॉन्स का एक टिपिकल एग्जांपल है। तो और भी अदर ड्रग्स हैं जो हार्मोन्स के एक्शन को या डिस्टर्ब करते हैं। ऑब्वियसली सेम हार्मोन दोनों सेक्सेस में नहीं है तो ऑब्वियसली ड्रग का एक्शन डिफरेंट है। इसके अलावा बॉडी वेट ऑफ द एनिमल, बॉडी वेट जिसका ज्यादा है उसमें ज्यादा डोज देना होगा, जिसका कम है उसमें कम देना होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भी हम ड्रग देते हैं वो आप एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है और उस ब्लड से पूरे बॉडी के सारे टिश्यू सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मेरे पास 5 टॉफीज हैं और आप 5 बच्चे हैं तो हर किसी को एक एक दूंगा, लेकिन अगर ऑल 57 आ जाए तब तो तोड़ना पड़ेगा, तो हर किसी को अमाउंट कम होगा। अगर ऑल 57 के लिए हमें 57 ऑर्डर करना होगा, तो अमाउंट या बॉडी वेट इज इंपॉर्टेंट। बॉडी वेट जिसका ज्यादा होगा, जैसे आप देखते होंगे मूवीज में कि वेटनरी के जो टैबलेट्स हैं वो बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि हमारे एनिमल्स का बॉडी वेट 500, 600, 700 केजी है, और हमारी जो बॉडी वेट है वो 50, 60, 70, 100 केजी से 50 to 100 केजी के पास है। तो हमें 500 मिलीग्राम का, 600 मिलीग्राम का टैबलेट होता है, हम जो आराम से पानी के साथ खा लें। हमारा टैबलेट 4 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम का नहीं होता है, क्योंकि हमारा ड्रग तो सेम है। बॉडी वेट मान लो उसका डोज रेट 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है और हमारी वेट 70 है, तो 700 मिलीग्राम का टैबलेट हमें लगेगा। लेकिन अगर सेम, और अगर ठीक है थोड़े डोज रेट्स वैरी करते हैं डिफरेंट स्पीशीज में, लेकिन अगर सेम है और अगर हमें उसे देना है, काऊ में देना है और काऊ 500 केजी का है, तो 5 ग्राम का टैबलेट लगेगा उसे। तो बॉडी वेट ऑफ द एनिमल इज इंपॉर्टेंट। जितना बॉडी वेट होगा उस प्रोपोर्शन में उसका डोज होगा, फाइनल डोज होगा। लेकिन अब कुछ और भी कंसिडरेशन देना होगा, जैसे कि अगर कोई रूमिनेंट है तो रूमिनेंट का हमसे 10 गुना ज्यादा वजन है तो 10 गुना बॉडी वेट उसका डोज नहीं होगा। उसमें बहुत सारे रूमिन कंटेंट्स हो सकता है, उसमें 40 केजी का रूमिन कंटेंट जिसमें वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो हमें उस रूमिनल कंटेंट का कैलकुलेशन में माइनस करना होगा या कंसिडरेशन रखना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल है और उसका प्रेग्नेंट फीटस और अदर पार्ट्स की वजह से उसका अगर 20-25 केजी, अगर कैटल बफलो है तो वो हो सकता है 50 केजी का अगर बढ़ा हुआ है, दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। ऐसे वेट लिया और आंख बंद करके चला दे रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर वेरी ओबीज कोई इंडिविजुअल है, जैसे अदन सामी को अगर देना हो, अभी तो दुबला हो गया, अगर कोई वैसा एग्जांपल ले लो, तो उसमें भी एडजस्टमेंट करना होगा। फैट में कितना ड्रग जाके डिपॉजिट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस वो ड्रग फैट सॉल्युबल है या नहीं है, इन चीजों का कंसिडरेशन करना होगा। आंख बंद करके डॉक्टरी नहीं होगी। अगर होता तो फिर फिजिशियंस, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर्स में अपना प्रॉब्लम डालो और वो सॉल्यूशन बता दे या ये क्वैक्स करते। तो ये सारे जो है बॉडी वेट कंसिडरेशन में ये सारी चीजों को ध्यान रखना। और यस प्लीज सर, मेरा डाउट ये है कि सर जब हम IUCD या कोई और इम्प्लांट लेते हैं तो वहाँ बॉडी वेट क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। अभी 2 मिनट बचा है, 2-3 मिनट, जैसे ही लॉग आउट होगा फिर से लॉग इन करेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं आपके क्वेश्चंस पे, पहले टेकअप करते हैं। IUCD क्या हुआ? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। राइट। तो ये क्या है, जो बॉडी वेट ऑफ द एनिमल है वो सिस्टेमिक रूट्स के लिए है। वो इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो लोकल
ट्रांसप्लांट है, वो लोकली एक जगह है, उसका जो है वो प्लस वहां से धीरे धीरे ड्रग जो है वो रिलीज हो रहा है और दैट इज गोइंग इनटू द सर्कुलेशन। और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, व्हाट इज द पर्पस, वो कहाँ पे बॉडी में जाके एक्ट करता है, कॉन्ट्रासेप्शन करता है। अगर वो डिवाइस डिफरेंट होता फिजिकली है, इफ दैट डिवाइस इज एक्टिंग फिजिकली, जैसे कॉपर टी है, तो कोई ड्रग नहीं है ना, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सिंपली जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है उसको ट्रांसप्लांटेशन को रोकता है, उसको ब्रेक कर देगा। अगर दूसरा है जिस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डोज डिपेंडेंट अगर है, जैसे कि जो लोकल ओवरी तक या यूट्रस तक उसका एक्शन लिमिटेड है, अगर मेरा और हम उसको लोकली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे किडनीज, लिवर, मसल्स में जा ही नहीं रहा है, तो पूरे बॉडी वेट पे कंसिडर करके उसको देने का क्या मतलब है। तो हम ड्रग का डोज डिसाइड करेंगे तो आंख बंद करके नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि वो बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या है, मेटाबॉलिज्म पैटर्न, एक्सक्रीशन पैटर्न क्या है। लेकिन अगर लोकली इंट्रा, जहां तक मेरी नॉलेज है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उनका सिस्टमिक एक्शन नहीं है, उनका लोकलाइज्ड एक सर्टेन रीजन ऑफ द बॉडी तक एक्शन है। तो उतने रीजन पे हमें काम करने के लिए हमें उतना ही अमाउंट का हमें जरूरत होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर 7 फीट 6 फीट टॉल लेडी है तो उसमें हम बड़ा वाला ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक यूट्रस का साइज एक स्पीशीज में एक रेंज में ही है, तो ह्यूमन फीमेल्स में एक लगेगा, अदर स्पीशीज है, कैट है, उनमें वेरिएशन हो सकता है, उनमें चेंज हो सकता है। तो जो सिस्टमिकली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स हैं जिनका सिस्टमिक एक्शन है, उसी में डोजेस एडजस्टमेंट होगा बॉडी वेट के हिसाब से, लोकल में नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा डाउट क्लियर है? यस सर। हाँ, इसके अलावा फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी एंड हो रहा है, मैं एंड करता हूँ, रीस्टार्ट करते हैं, 10-15 मिनट में क्लोज करेंगे। The next very important factor is route of administration. हमने पढ़ा है कि डिफरेंट रूट्स, अगर किसी ड्रग को हम इंट्रावेनस रूट से दें, by that route the drug will be acting very fast because there is no need for absorption. All the drug is made available directly into the blood vascular system. अगर हम इंट्रामस्कुलर दें तो मसल से एब्जॉर्ब होने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, इंट्रापेरिटोनियल दें मसल से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, सबक्यूटेनियस दें उसमें और थोड़ा ज्यादा लगेगा, इंट्राडर्मल दें उसमें और ज्यादा लगेगा, ओरल रूट से दें तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने। तो जितना लैग टाइम होगा एब्जॉर्प्शन का, अगर कोई 5 मिनट में एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई 50 मिनट में हो रहा है, ऑब्वियसली ड्रग का एक्शन अलग अलग होगा, डिलेड होगा, किसी में ज्यादा होगा, कम होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है। सो रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिसाइड्स गवर्न्स द इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन, कितना इंटेंस एक्शन हो रहा है और कितना डिलेड एक्शन हो रहा है, ये दोनों फैक्टर्स को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। प्लस इसके साथ ही क्या है, रूट ऑल्सो, एक ड्रग को अगर डिफरेंट रूट से दें तो सारे रूट से सेम काम करेगा ऐसा नहीं है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट को अगर इंट्रावेनसली दें तो मैग्नीशियम सल्फेट लोअर डोजेज में इट कॉजेज मस्कुलर पैरालिसिस, ये जो है मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम कर सकता है। डोज ज्यादा बढ़ा कर दें तो इट विल एक्ट एज यूथनाइजिंग एजेंट, एनिमल को अगर जान से मारना है तो इंट्रावेनस मैगसल्फ का हाई कॉन्सेंट्रेशन दे दो तो डेथ हो जाएगी। फिर अगर लोकली टॉपिकली अप्लाई करें मैग्नीशियम सल्फेट को, अगर गर्म पानी में डाल के मैग्नीशियम सल्फेट को गर्म पानी से सेके हॉट फर्मेंटेशन करें तो उसका अलग एक्शन है, वो पेन किलिंग एक्शन है। अगर वुंड में गैंग्रीनस वुंड में मैग्नीशियम सल्फेट दें तो वो गैंग्रीन को डिसॉल्व करके निकाल लेगा, ड्रेन करने का काम करेगा। तो ड्रग इज द सेम बट उसको डिफरेंट रूट और डिफरेंट वेज में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, उसके एक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग हो, बट ये इट डिपेंड्स ऑन द ड्रग। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी ड्रग एक्शन को डिफाइन कर रहा है, गाइड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ रूट ही नहीं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे एक हिप्नोटिक ड्रग है, नींद की दवा है। अब नींद की दवा जो है, सुबह उठे और खाना पीना खाने के बाद ऑफिस जाने के बाद नींद की दवा ले ली, काम ही नहीं करे, बोला कोई नींद, पता ही नहीं चला कब नींद आया गया। तो सोने के पहले काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट में लेंगे तो उसका एक्शन ज्यादा होगा। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर स्लीपिंग एजेंट्स हैं, हिप्नोटिक एजेंट्स हैं, तो उनका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं फॉर अदर रीजंस, तो उसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे आर उनका जो है वो पिट्यूटरी एड्रिनल सेपरेशन है। तो अगर देखा गया है कि सिंगल मॉर्निंग डोज लें तो इसका लेस पिट्यूटरी एड्रिनल सेपरेशन होता है, कम इनहिबिट करता है, तो वो भी एक टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे एनिमल्स में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन ह्यूमन बीइंग्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी तबीयत खराब है, आप एक डॉक्टर के पास गए, बड़ा परेशान है, डॉक्टर बड़ा अच्छा से मिला, ये बैठिए, ये वो सब हाल समाचार पूछा, बोला अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा, बेकार में परेशान है, और झूठ मूठ डॉक्टर बोला, उसको पता भी नहीं है कि क्या है, और ऐसे कुछ ग्लूकोज का टैबलेट लिख दिया, सुबह शाम लीजिए करके, और ये टेस्ट करा लीजिए, तो तब तक टेस्ट रिपोर्ट आता है, खाइए आप ठीक हो जाइएगा। उसने सिंपल ग्लूकोज के टैबलेट दिए हैं, इसका कोई एक्शन नहीं है। तो सिंपल ग्लूकोज 500 मिलीग्राम ग्लूकोज आधा ग्राम से क्या होने को है, कुछ नहीं होने को है। बट इतना अच्छा से बात किया, मेरी आधी तो बीमारी वहीं ठीक हो गई कि नहीं नहीं परेशान था, एक डॉक्टर क्वालिफाइड पढ़ा लिखा बोल रहा है कि नहीं ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, हमारे न्यूरॉन से भी बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हमारे वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। अगर हम वो फैक्टर्स अगर प्रॉपरली रिलीज हो रहे हैं तो बहुत सारी हमारी परेशानियां ऐसे भी दूर होंगी। तो अगर कोई फॉल्स मेडिसिन दे, इनर्ट मेडिसिन दे, जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, दैट मेडिसिन इज नोन एज प्लेसिबो। वो डॉक्टर जब तक उसको टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ रहा, बोले कि अभी टेस्ट करने के लिए दिए हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगा तब तक कभी तो दवा नहीं दे सकता, हमको पता ही नहीं है क्या दें, ऐसा बोल देगा तो और आपका परेशानी बढ़ जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्लेसिबो टाइप का मेडिसिन, हमेशा ग्लूकोज टैबलेट नहीं लिखता, कुछ हल्का फुल्का अपना दे दिया, जिसका मेन जो आपका बीमारी की समस्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो भी आप वेलबींग फील करते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस में पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो इन दैट केस साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है ड्रग एक्शन में, कि हमारे पेशेंट्स में, एनिमल्स में साइकोलॉजिकल फैक्टर का उतना रोल नहीं है, बट ह्यूमन बींग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर बताया ड्रग इंटरेक्शंस, कि ड्रग का जो इंटरेक्शन है, ये भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो बिल्कुल बदल जाएगा। तो ड्रग इंटरेक्शन बताया, फार्माकोकाइनेटिक हो सकता है, फार्माकोडायनामिक हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में एब्जॉर्प्शन के लेवल पे हो सकता है, कोई दो ड्रग अगर एक ड्रग दूसरे के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है, जैसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, दूध में अगर कुछ कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन को चिलेट करेगा, अफेक्ट करेगा, या कोई मेटालिक एंटासिड्स है उसके साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। फिर कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, जैसे एड्रेनलिन है, अगर उसके साथ नॉरएपिनेफ्रिन या फिर सॉरी उसके साथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स मिला हुआ रहता है, प्रोकेन आदि वाला, वो क्या करता है उसके एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है। तो एब्जॉर्प्शन को कम ज्यादा करके भी हम ड्रग एक्शन को हम मॉडुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बताया, बहुत सारे ऐसे बॉडी में ड्रग्स हैं विच आर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। बड़े रिस्की ड्रग्स हैं वैसे, जैसे फिनाइल ब्यूटाजोन है, फ्रूसामाइड है, डिजॉक्सिन है, प्रोप्रानोलॉल, डाइजेपाम, क्विनिडीन। ठीक है, आप 99% है तो 1% फ्री ड्रग है, डॉक्टर उसी हिसाब से डिसाइड करके डोज दिया होगा कि 10 मिलीग्राम का टैबलेट लीजिए। लेकिन आपने बोला कि ये तो खाया, हमको ये पेन भी रह रहा है, इसका भी दवा खा लेते हैं, ये तो डॉक्टर से नहीं लिखवाया है। आपको पता नहीं है कि जो पेन वाला दवा और ये डायज़ेपाम के बीच में अगर कोई फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है, और एक वो जो पेन वाला दवा है वो फिनाइल ब्यूटाजोन या फिर एस्पिरिन जो है या डिस्प्रिन जो है, वो डायज़ेपाम के प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को 2% कम कर देता है।
तब तो गजब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो 1% फ्री है, 1% फ्री से आपको नींद दिला रहा है, और अगर 2% और एडिशनल फ्री हो जाए तो उसका एक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा। दैट में लीड टू डेथ ऑल्सो। अगर वो स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट है, एक लेवल से ज्यादा सीरियस डिप्रेशन होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि जो पैरेलल ड्रग दे रहे हैं उसका फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन कितना है या नहीं है। तो आपको ड्रग के बारे में हर चीज पता होना चाहिए, तभी यूज कर सकते हैं। एक मोटा मोटी इतना ही है। आधा अधूरा अभी पढ़ लिया कि मान लो कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट, और अगर आपको पढ़ लिया और खुद से इलाज करने लगे, नहीं, पूरी बॉडी का फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, सर्जरी, एवरीथिंग, प्लस उस ड्रग का सारा चीज, जब तक 5 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाए आप कंफर्टेबली प्रिस्क्रिप्शन के राइट्स नहीं मिलते। इसके वजह ये ही सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आइसोलेशन में कोई काम नहीं करता, हर सब सारी चीजें इन टोटलिटी काम करती हैं। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म भी है, बहुत सारे एक ड्रग है जैसे बार्बिचुरेट्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स है, ये सॉरी ये बार्बिचुरेट्स जो है वो जनरल एनेस्थेटिक्स है, और ये क्या है कि एंजाइम इंडक्शन करता है। अगर बार्बिचुरेट, बहुत सारे ड्रग है जो बार बार अगर ले रहे हैं तो हिपैटिक एंजाइम्स को इंड्यूस कर देते हैं। बहुत सारे हिपैटिक ऑक्सीडेजेस हैं, रिडक्टेजेस हैं, जो माइक्रोसोमल मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेजेस हैं, उनका प्रोडक्शन रेट फास्ट हो जाता है। तो फास्ट हो गया, अब जैसे कि कोई मेरे स्टोर में अगर सीजर्स रखे हुए हैं, कोई एक बंदा आता है, उसके आने से वो सीजर्स अपने ड्रॉअर से बाहर निकलने लगे, या उनका प्रोडक्शन रेट फास्ट हो जाए। अब उसके बाद कोई नॉर्मल आदमी जाए, उसके कपड़े कटने लगे, तो उसको तो पता ही नहीं था यार कि हम पहली बार आए यहाँ, सीजर्स सब रेडी है हमको काटने के लिए। तो अगर ये बार्बिचुरेट या बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो हिपैटिक एंजाइम्स को इंड्यूस कर दे, अगर उनका प्रोडक्शन रेट फास्ट कर दे, तो दूसरा ड्रग भी आएगा, वो भी ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो अब तो दूसरा जो ड्रग है उसको, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन एक पहला वाला ड्रग की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जा रहा है। अदरवाइज पहला वाला ड्रग नहीं दिए हुए होते तो उसका मेटाबॉलिज्म उसका अलग होता, हो सकता है उसका बॉडी में लॉन्जेविटी ज्यादा होता है, उसका हाफ लाइफ ज्यादा होता है। तो मेटाबॉलिज्म भी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन का पार्ट है, और ये भी ड्रग्स के एक्शन को मॉड्यूलेट कर रहा है। एक्सक्रीशन भी, जैसे एक वेरी ब्यूटीफुल टिपिकल एग्जांपल एक ड्रग है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक्सक्रीट आउट होता है। एक्सक्रीशन के में आपने पढ़ा होगा, नेफ्रॉन्स में एक्सक्रीशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन है, फिर सिक्रीशन है, ये सारे स्टेप्स आपने पढ़ा है। एक है एक्टिव सिक्रीशन, सिक्रीशन इन द ट्यूब्यूल्स, वो जबरदस्ती डालते हैं ताकि यूरिन से निकल सके। अब ये प्रोबेनिसिड का जो नॉर्मल एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है, इट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। पेनिसिलिन्स का भी जो बॉडी से एक्सक्रीशन जो मैकेनिज्म है, इट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूल्स में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो सिक्रीटरी चैनल्स हैं, वो तो लिमिटेड हैं। अब बोले पहले हम जाएंगे, जब तक प्रोबेनिसिड रहेगा पेनिसिलिन को नहीं जाने देगा। तो अगर प्रोबेनिसिड को अगर साथ में दे दें तो पेनिसिलिन का बॉडी में लॉन्जेविटी बढ़ जाता है। तो एक सिक्रीशन से भी ड्रग के एक्शन को, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन की वजह से ड्रग का एक्शन मॉड्यूलेट हो रहा है। इसी तरीके से फार्माकोडायनामिक भी हो सकता है। अगर सेम कॉमन रिसेप्टर के लिए अगर ड्रग्स कॉम्पीट करें, तो जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, या जितना अभी आपको पहले बताया, तो ये सारे फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस की वजह से। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्रग एक्शन को गाइड करता है, जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एक पेशेंट बड़ा दुबला पतला है, बरसों से लगता है खाया पिया नहीं है, और उसका बॉडी वेट एकदम नहीं है, वेस्टिंग कंडीशन है ना, प्रॉपर मसल्स हैं, ये उसको कोई ड्रग नॉर्मल डोज में अगर प्रेस्क्राइब कर दे तो मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है उसका एक्शन उस पर भारी पड़े। तो ड्रग की टॉक्सिसिटी को अफोर्ड करने के लिए भी उसका गुड हेल्थ या एक नॉर्मल वेट फिजिक होनी चाहिए। तो जो वीक एंड डेबिलिटेटेड एनिमल्स हैं उसमें वो ड्रग इफेक्ट से ज्यादा सेंसिटिव। क्यों ऐसा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि वो वीक एंड डेबिलिटेटेड है, उसका लीवर भी प्रॉपर नहीं होगा। लीवर में जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं, स्टोर्स हैं,
वो बहुत हद तक हेल्पफुल होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। ग्लाइकोजन स्टोर्स उसका नील हो सकता है, लो हो सकता है, उसका लिवर प्रॉपरली ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर सके। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि जो वीक एंड डेबिलिटेटेड एनिमल्स में ड्रग के एक्शंस को बढ़ा दे, उसमें ज्यादा एक्शन हो सकता है उसमें टॉक्सिक एक्शन भी ज्यादा हो। कोई ऐसा है जो जनरल हेल्थ ऑफ द एनिमल में जो हाईली ओबीज है, जो फैटी है, तो उसमें ड्रग दिया, वो फैट सॉल्युबल ड्रग है, तो ड्रग दिया तो बोला कोई असर ही नहीं हो रहा है इसमें, तो सारा का सारा तो उसका फैट में चला गया, ब्लड में कुछ बचेगा तब तो उसका एक्शन होगा, उसके लिए उसका ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट है जिसका किडनी खराब है, इम्पेयर्ड किडनी है, तो अब वो नॉर्मली तो एक्सक्रीट आउट होगा नहीं अच्छे से किडनी से, उस ड्रग का डोज एडजस्ट करना होगा। इम्पेयर्ड हिपैटिक इम्पेयरमेंट या रीनल इम्पेयरमेंट या अदर ऑर्गन डैमेज का कंडीशन में है, तो उसमें डॉक्टर को रिकैलकुलेट करना होगा डोज, ताकि उसका फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे कुछ एक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस ये लास्ट फैक्टर है, विद इन 2-3 मिनट्स हम कंप्लीट करेंगे। ड्रग टॉलरेंस क्या होता है? एक ही ड्रग अगर बार बार ले रहे हो, जैसे बहुत सारे स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं, डायजेपाम है या हिप्नोटिक्स है, जिसको नींद नहीं आ रही है, रोज एक टैबलेट लेके ही सो रहा है, तो 2-3 महीने बाद एक टैबलेट में नींद नहीं आएगी उसको, अब उसको 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, फिर और बार डोज टाइम टू टाइम बढ़ाना पड़ेगा उसको। क्यों ऐसा होता है? तो वो जो टैबलेट है या जो वो मेडिसिन ले रहा है, वो अपने टारगेट्स पे कहीं जाके बाइंड कर रहा है, और वो टारगेट एक सेम, बहुत सारे लोग आप स्कूटी चलाते होंगे या बहुत सारे लोग बरसों से बाइक चला रहे हैं, तो बाइक की चाबी घिसती है और घिसने के बाद फिर नई चाबी लगानी पड़ती है, तो जो या फिर उसका लॉक खराब हो सकता है। तो ड्रग सेम रिसेप्टर से आप एवरीडे ड्रग ले रहे हो, तो वो ड्रग जाके सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, जिससे उसको नींद आ रही है। रिसेप्टर डैमेज हो सकता है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो सकता है, या अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जिससे उस ड्रग का एक्शन ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ कोर्स, वो उसका एक्शन धीरे 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 घट सकता है। तो हम क्या बोले कि हमारा बॉडी जो है टॉलरेंट हो रहा है, काम नहीं कर रहा। दिस phenomenon is known as drug tolerance. If you require, if there is requirement of higher doses of a drug to produce a given response, the phenomenon is known as drug tolerance. अब ये drug tolerance नेचुरल भी हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो नेचुरल किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे कि रैबिट्स है, रैबिट जो है एट्रोपिन का टॉक्सिटी नहीं होता, एट्रोपिन का एक्शन ही नहीं होता, इट इज नेचुरल टॉलरेंस, क्योंकि उसके बॉडी, उसके जीआई ट्रैक्ट के म्यूकोसल सिस्टम में एट्रोपिनेज एंजाइम है जो सिंथेसाइज होता है वहां, तो ये नेचुरल ड्रग टॉलरेंस है। चिक्स हैं, जो चूजे हैं, उनमें स्ट्रिक्नीन का एक्शन नहीं होता है। स्ट्रिक्नीन एक कन्वर्सेंट एजेंट है, अगर स्ट्रिक्नीन आप ले लें, खा लें, तो कन्वर्शंस इंड्यूस होगी। कन्वर्शंस कहाँ से इंड्यूस होता है? जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का एक्सेसिव एक्शन की वजह से कन्वर्शंस इंड्यूस हो रहा है। चिक्स में स्पाइनल कॉर्ड अंडर डेवलप्ड होता है, तो जो टारगेट साइट ही नहीं है तो उसका एक्शन नहीं होगा। तो ये सारे जो है नेचुरल ड्रग टॉलरेंस के एग्जांपल्स हुए। इसके अलावा एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस हो सकता है, कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सेम ड्रग बार बार 2-3 महीने, जैसे डायजेपाम बताया, तो ये ड्रग टॉलरेंस नॉर्मली किसी टाइप का ड्रग के साथ हो सकता है। जो आप कंटिन्यूअसली 3 महीने से खा रहे हो, तो उसका टॉलरेंस थोड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट, सीएनएस डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं, उनके साथ ड्रग टॉलरेंस का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, जैसे कि मॉर्फिन, बार्बिटूरेट्स या डायजेपाम, ये सारे बताया। और एक ड्रग अगर 5 मैकेनिज्म से काम कर रहा है, जैसे कि आपको बताया था कि कुछ ट्रांकुलाइजर्स हैं, उसका एंटी साइकोटिक एक्शन है, उसका अदर एक्शन है, तो सारे एक्शंस में ड्रग टॉलरेंस हो जाएगा ऐसा नहीं। कोई हो सकता है कोई उसका एक एक्शन पे ड्रग टॉलरेंस हो, 2 पे हो, तो ये भी ड्रग टॉलरेंस में हो सकता है। क्रॉस टॉलरेंस भी हो सकता है, जैसे 2 जुड़वा बच्चे हैं घर में, बहुत बदमाशी करते हैं, एक ने जाके कुछ बदमाशी कर दिया, मम्मी आई दूसरे को झापड़ा रसीद दिया। ये क्रॉस टॉलरेंस हुआ कि एक की वजह से दूसरा, क्योंकि सिमिलर है, दोनों दिख रहा है। तो अगर जो सिमिलर ड्रग्स हैं बॉडी में, जिसका सेम सिमिलर नेचर है केमिस्ट्री, या एक ही फैमिली का 2 ड्रग है,
जिसमें बहुत माइनर डिफरेंसेस है, और वो बॉडी में अगर कुछ उसके अगेंस्ट टॉलरेंस होता है तो दूसरे के अगेंस्ट भी टॉलरेंस हो जाएगा। अब ये क्रॉस टॉलरेंस पार्शियल हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। मम्मी को लगा कि अरे फलना वो एक बदमाशी किया होगा, मम्मी को डाउट लगा तो पूरा जोर से रसीद नहीं करेगी, धीरे से मारेगी, लेकिन कंफर्म हो जाए कि नहीं यही है तो हो सकता है। तो ये पार्शियल या कंप्लीट भी हो सकता है। क्रॉस टॉलरेंस जो है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, 100% कंप्लीट हो सकता है। जैसे मॉर्फिन एंड बार्बिट्यूरेट्स में जो क्रॉस टॉलरेंस है वो पार्शियल है, मॉर्फिन एंड पैथेडीन में कंप्लीट है। स्ट्रक्चर 100% बहुत ज्यादा मिलेगा तो कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट मिलेगा तो इनकम्प्लीट होगा, लाइक दैट। इसके बाद लास्ट वर्ड जो है, इसके बाद चैप्टर इसके बाद खत्म होगा। ओके, लास्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट नोट्स में नॉर्मली पूछता है, टैकीफाइलैक्सिस। व्हाट इज टैकीफाइलैक्सिस? टैकी दो वर्ड्स है, टैकी मींस फास्ट, फाइलैक्सिस मींस प्रोटेक्शन। टैकीफाइलैक्सिस मतलब कोई ड्रग हम ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में फास्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, नॉट इम्यून के सेंस में नहीं, वो अब हमारे बॉडी पे काम नहीं करेगा। So when certain drugs are administered at the same dose at frequent short intervals, the response will decline progressively. आज जितना रेस्पॉन्स है कल कम होगा, परसों कम होगा, तरसों कम होगा, और एक समय के बाद उसका रेस्पॉन्स हो सकता है ना भी हो। ये भी टॉलरेंस ही है, बट इसको एक स्पेशल वर्ड बनाया हुआ टैकीफाइलैक्सिस, बिकॉज दिस टॉलरेंस इज डेवलपिंग एट ए फास्टर रेट। और फिर उस ड्रग को लेना छोड़ दिया, 2-3 महीना नहीं लिया, तो फिर उसका एक्शन वापस रिस्टोर हो जाता है कि 6 महीने बाद लेंगे तो फिर नॉर्मली काम करेगा, और फिर लंबे समय लेंगे तो ये। तो नॉर्मली ये क्यों होता है टैकीफाइलैक्सिस? इसका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट है। अगर वो, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं जो बॉडी में डायरेक्टली काम नहीं करते। डायरेक्ट एक्शन मतलब आपने सीधे सीधे जाकर रिसेप्टर पर बाइंड किया, रिसेप्टर को अनलॉक किया, ये डायरेक्ट एक्शन। एक इनडायरेक्ट एक्शन है जो जाके किसी और को पैरवी करेगा, किसी और ड्रग के साथ अटैच करेगा, और वो ड्रग जाके रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। जैसे मेरे को अगर किसी से बात करनी, डीन साहब से बात करनी हो, मैं सीधे सीधे नहीं बात करूँ, किसी को बोलूँ कि ऐसा ऐसा, वो उनके पीए को बोलूँ, पीए अगर एब्सेंट है तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास अगर रूल बना हुआ है कि यू कैन नॉट टॉक डायरेक्टली। तो अब डिपेंड करेगा कि जिसके वाया मीडिया से बात कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी, और उसकी अवेलेबिलिटी जितनी होगी। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इनडायरेक्टली काम करते हैं, और जिस मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं वो धीरे 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 डिप्लीट हो रहा है। पहला बार काम किया, थोड़ा खर्च हो गया, लगातार 5, 6, 7, 8वां डोज में वो बिल्कुल नील हो गया, तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा, और फिर 10 दिन नहीं देंगे तो फिर बॉडी में फिर से रिस्टोर हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके के मैकेनिज्म से अगर कोई काम करे तो नॉर्मली टैकीफाइलैक्सिस इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के साथ होता है। एक टर्म है ड्रग रेसिस्टेंस, नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में यूज होता है। जैसे एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक किस पे काम करता है? माइक्रोब्स पे काम करता है। माइक्रोब्स भी हो सकता है कि थोड़ा दिन के बाद नहीं एक्ट करे, नहीं उसे सेंसिटिव हो। माइक्रोब्स पे वो ड्रग, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हम पेनिसिलिन ले रहे हैं तो हो सकता है स्टाफ ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस थोड़े दिन बाद पेनिसिलिन से नहीं डाई करे। तो इस मैकेनिज्म्स को, रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द एंटीबायोटिक और टू द ड्रग, इज कॉल्ड ड्रग रेसिस्टेंस। और अगर हमारा बॉडी उससे रेसिस्ट कर रहा है तो इसको रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको ड्रग टॉलरेंस बोलेंगे। ड्रग टॉलरेंस और ड्रग रेसिस्टेंस में ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, थोड़ा थोड़ा और पढ़ते जाइए। अभी बहुत सारी चीजें, आज थोड़ा सा काफी कुछ शॉर्ट हरी में बताया, क्योंकि ऑलरेडी वी वर डिलेड, यूनिट 1 खत्म होने का टाइम हो चुका था, और अगर इस पेस में नहीं पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं। अगर कुछ डाउट है वी कैन टेक अप 1 और 2 क्वेश्चंस, नहीं तो फिर जो स्पेशल क्लास है उसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ है, किसी को पूछना है देन कोई पूछ सकता है। यस प्लीज, एनी डाउट? If there is no doubt, very good. No study, no confusion, or 100% understood. How many people are there? There are 21. Okay, I can understand the problem why there is less attendance.
इसके बाद नेक्स्ट वीक से डॉक्टर रश्मि आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे। सिंस ये एनुअल सिस्टम का जो क्रैश कोर्स सिस्टम है, एक वीक में 4 लेक्चर्स हैं, और आपको हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि सिलेबस कौन कितने क्लासेस में कितना कवर होगा, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। और टुडे वाज द 23rd लेक्चर, 2 लेक्चर्स डॉक्टर रश्मि ने लिया था, तो आई थिंक वी हैड 25 लेक्चर्स इन जनरल फार्माकोलॉजी, और यूनिट 1 में 25, हर एक यूनिट में अगर 25 रखे तो 4 यूनिट में 100, और यूनिट 5 और यूनिट 6 2 यूनिट के बराबर है, तो उसमें भी 100, तो 200 लेक्चर में जाके खत्म हो, और पूरा ईयर में 200 लेक्चर क्या 150 हो जाए तो बहुत है। तो ऑलरेडी वी कैन से वी आर बिहाइंड द स्पीड, और देखते हैं कुछ एडिशनल क्लासेस होंगे, तो इसलिए एक एडिशनल क्लास जो है वो एक वीक गैप के बाद, फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बता दूं, और उसके बाद एक उस एडिशनल क्लास के बाद एक टेस्ट परफॉर्म करें। ऑनलाइन टेस्ट है जो अपार्ट फ्रॉम 10 से आपका एक क्लास है, आप गूगल फॉर्म्स पे कर सकते हैं। वो आपका फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉमन भी हो, और आपका एक पूरे सिलेबस का थॉरो रिव्यू हो जाएगा। और जो इंटरनल टेस्ट मैं लूंगा, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट नहीं, जो रैंडम टेस्ट अभी जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ एंड में होंगे, और जो क्लास डिस्कशन सिर्फ सुन करके आप नहीं बना पाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू सर्टेन बुक्स। मेरे नोट्स, मेरे पीपीटीज में भी सारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से BVSN एज कंप्लीट करने के बाद कहीं भी जाएं तो सारी जगह पे हम ही क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कोई भी बना सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये पर्पस टेस्ट का यही है कि आपको JRF या इन चीजों के लिए यूनिट 1 का कंप्लीट रिविजन हो जाए, और उसमें आप 100 आउट ऑफ अगर 100 स्कोर करते हैं तो मान के चलेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हुई। तो मैं थोड़ा 1 वीक में उनके क्वेश्चंस बनाऊंगा, और फिर डेट्स अनाउंस करेंगे, फिर अदर एक्टिविटीज भी प्लान करेंगे। अगर कुछ पूछना है वी कैन टेक अप, और इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, थैंक यू। शुड वी डिसकंटिन्यू द क्लास? Okay, okay, thank you. Although I'm not able to hear anybody of you, any. Okay, thank you.